आगे बढ़े آپ کو بتائیں سندھ حکومت سے ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد اوان کی سربراہی میں ٹرانسپورٹرز کا وفد مذاکرات میں موجود تھا۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ سندھ حکومت سے ٹرانسپورٹرز کے وسیم افتخار ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ حکومت کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ گڈز ٹرانسپورٹرز کے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، بے نتیجہ نکلے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو صوبائی وزیر تھے وہ اور جو دیگر متعلقہ جو افسران تھے انہوں نے شرکت کی، اور اس مذاکرات میں جو صوبائی سطح پہ جو گڈز ٹرانسپورٹرز کو درپیش جو مسائل تھے اور جو تحفظات تھے وہ حکومت سندھ کو جو ٹیم تھی ان کو پیش کیے گئے۔ تاہم جو ذرائع ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹ کے ذرائع کا بتانا ہے کہ یہ جو مذاکرات تھے یہ جو ہے وہ بے نتیجہ نکلے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ملک شہزاد اوان کی سربراہی میں مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ گڈز ٹرانسپورٹرز میں غلام یاسین جو اس کے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ نثار جعفری موجود تھے، اور دیگر جو رہنما تھے یہ اس مذاکرات میں موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سندھ اسمبلی میں جشن آزادی کے موقع پر خصوصی اجلاس ہوا۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے ارکان اسمبلی کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ 1943 کی تاریخی قرارداد پاکستان کو ایک بار پھر متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ایوان تاریخی قرارداد اور آزادی کے نئے عزم، پاکستان کے 79ویں یوم آزادی پر سندھ اسمبلی میں خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ 1943 میں ایک ایسی قرارداد منظور کی گئی، ان بڑی شخصیتوں نے وہ قرارداد منظور کروائی، اس سوچ کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، جس سوچ کی بدولت آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے ارکان اسمبلی کے ہمراہ پرچم کشائی کی، جبکہ اس موقع پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اجلاس میں 1943 میں سندھ اسمبلی سے منظور ہونے والی قرارداد پاکستان کو دوبارہ ایوان میں پیش کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رکن جمیل سومرو نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ اجلاس کے دوران مختلف ارکان اسمبلی نے خطاب کیا اور قیام پاکستان کے لیے دی جانے والی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 1940 کو قرارداد پاکستان اگر منظور ہوئی تھی تو وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر منظور ہوئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جو قائد اعظم کا لقب ملا تھا وہ اسی جدوجہد کی بنیاد پہ ملا تھا، اور ہمارا نعرہ تھا کیا؟ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو قائد اعظم صاحب کا جو میسج تھا وہ کلیئر ایک ویژنری لیڈر کی طرح تھا کہ آپ سب برابر ہیں، آپ کہیں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ خصوصی اجلاس میں ینگ پارلیمنٹیرینز کی پرجوش تقاریر نے بھی ارکان اسمبلی کی توجہ حاصل کی، جبکہ تقاریر کے دوران ایوان ڈیسک بجانے سے گونج اٹھا۔ یہ جان تو اتنی ونجنی ہے، میرے صاحب نے بولا یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، وہ جس مقتل میں گیا وہ مقتل شال سلامت۔ جونیئر سردار شاہ حادثہ ایوان نے متفقہ طور پر 1943 کی قرارداد پاکستان کو دوبارہ منظور کر لیا، جس کے بعد اسپیکر اویس قادر شاہ نے مختلف جماعتوں کے ارکان اسمبلی کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ سندھ اسمبلی میں خصوصی اجلاس کے دوران قیام پاکستان کی جدوجہد اور قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وطن عزیز کے 79ویں جشن آزادی کے موقع پر گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں ملک میں رقوم بھیجنے والے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے جلد ہی ایک اسکیم کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو عسکری سیاسی صلاحیت دکھانے کے بعد پاکستان معاشی صلاحیت دکھانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اسٹیٹ بینک میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب کا احوال بتائیں گے وسیم افتخار اپنی رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک میں یوم آزادی کی تقریب کا آغاز گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے کی جانے والی پرچم کشائی سے ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے تقریب سے خطاب میں ملکی معیشت میں ہونے والی پیش رفت اور درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال 2026 میں مہنگائی کی شرح 7.1% رہی، جبکہ مالی سال 2026-27 میں مہنگائی کی شرح 5.7% تک رہنے کی توقع ہے۔ مالی سال 2026 میں پاکستان کا مہنگائی کا تناسب 7.1% رہا ہے۔ اس اسٹیٹ بینک
महंगाई को दरमियानी मुद्दत यानी 5 से 7% के हदफ में बरकरार रखने के लिए भी कोशां है, जबकि मुआशी सरगर्मियों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। तकरीब में कौम के नौनिहालों ने खूबसूरत मिली नगमे सुनाकर समा बांध दिया और पाक बहरिया के बैंड ने मिली नगमों की धुनों के जरिए जज्बे हुब्बुल वतनी को उजागर किया। स्टेट बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से गवर्नर स्टेट बैंक को सलामी पेश की गई। स्टेट बैंक म्यूजियम में मुनक्किद की गई नुमाइश का गवर्नर स्टेट बैंक ने इफ्तिताह किया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानी के लिए खुसूसी स्कीम का ऐलान किया जाएगा। रेमिटेंसेस के ऊपर मैं खास कर बात करना चाहता हूँ कि अभी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो एक बहुत बड़ी स्कीम हमारे जो रेमिटेंस सेंडर्स हैं वहाँ से जो पैसे भेज रहे हैं, हमारे जो डायस्पोरा है, बाहर हमारे भाई जो काम करते हैं और वो यहाँ पे रेमिटेंस तरसीलात ज़र भेजते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम हम लेके आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने इस अज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान की पायदार माशी तरक्की, माली इस्तेहकाम और आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस में जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। NBP के सदर रहमत अली हसनी ने कहा कि हकीकी आज़ादी का मतलब हर पाकिस्तानी के लिए मुआशी खुदमुख्तारी और मालियाती शमूलियत को यकीनी बनाना है। नेशनल बैंक हेड ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में नेशनल बैंक के सदर और सीनियर एग्जीक्यूटिव समेत दीगर मुलाज़मीन ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने परचम कुशाई के साथ किया गया। इस दौरान मिली जोश जज्बा और भाईचारे पर जोर दिया गया और मुल्क की सालमियत के लिए नेक तमन्ना की गई। खुशी के इस मौके पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। तकरीब से खिताब में NPP के सदर रहमत अली हसनी ने कहा कि हकीकी आज़ादी का मतलब हर पाकिस्तानी के लिए मुआशी खुदमुख्तारी और मालियाती शमूलियत को यकीनी बनाना है। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक परचम तले मज़ार क़ायद पर यौम आज़ादी के मौके पर अमन वॉक शुरका ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के आज़म का इज़हार किया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। मज़ार क़ायद पर यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब, अमन वॉक में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों की शिरकत, हाथों में कौमी परचम, पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार, अमन, इत्तेहाद और कौमी यकजहती का पैगाम। मज़ार क़ायद कराची में यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी तकरीब और अमन वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में मुस्लिम, हिंदू, सिख, मसीही और पारसी बरादरियों के मजहबी रहनुमाओं और नुमाइंदों समेत कारोबारी बरादरी, वकला, नौजवान, तलबा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर समिया बारीका ने कहा कि तकरीब का मकसद यौम आज़ादी को कौमी जज्बे के साथ मनाने के साथ अमन, इत्तेहाद, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और कौमी यकजहती का पैगाम आम करना था। हमने आज मज़ार क़ायद के ऊपर एक यूनिटी फॉर पाकिस्तान पीस वॉक के नाम से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसका मेन मकसद ये था कि हम हर मज़हब, हर फ़िरके के लोगों को, आज यहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, सब हैं, और इस बात का अहद करें कि हम साथ मिलकर एक पेज पे रहकर पाकिस्तान के अमन और खुशहाली में अपना हिस्सा डालेंगे। अमन वॉक में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों की मुश्तरका शिरकत ने इत्तेहाद में तनाव के खूबसूरत पैगाम को उजागर किया। माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो बस हमारा तो एक ही नारा है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। उसमें तो हमें और बढ़ चढ़ के इस दिन को मनाना चाहिए और समझ लें अपना सपोर्ट पाकिस्तान के लिए, पाक आर्मी के लिए दिखाना चाहिए कि भाई हम पूरी कौम एक हैं। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको अगर अहसन तरीके से हम सर अंजाम देंगे, इंशाअल्लाह ताला मुल्क के लिए भी फ़ायदा होगा, हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा आबाद था और आबाद ही रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अमन वॉक का इख्तिताम पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ और कौमी यकजहती के अज़म के साथ हुआ। कैमरामैन काशिफ खान के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के तहत यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी थे। इस मौके पर सईद गनी ने कहा कि सियासी जमातों, अदालतों, मीडिया और दीगर इदारों को अपनी हुदूद मुतय्यन करना होगी। तकरीब के मौके पर सूबाई वज़ीर सईद गनी, काटी के अहदेदारान, साबिक़ सदूर और अरकान ने कौमी परचम लहराया, जबकि पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। तकरीब से काटी के सदर मोहम्मद इकराम राजपूत, डिप्टी पैट्रन इन चीफ ज़ुबैर छाया और चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि हालिया पाक भारत मार्के के बाद यौम आज़ादी के जोश जज्बे में कई गुना इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। कराची में MQM पाकिस्तान के तहत जश्न आज़ादी के सिलसिले में मरकजी प्रोग्राम फ्रेस्को चौक बर्न्स रोड पर मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी के मरकजी कायदीन और रहनुमाओं समेत कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में रहनुमाओं ने मुल्की सलामती, यकजहती और सिंध के सियासी हालात पर इज़हार ख्याल किया, जबकि प्रोग्राम के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात मुबश्शिर हुसैन की रिपोर्ट में।
जश्न आज़ादी के मौके पर फ्रेस्को चौक बंस रोड पर MQM पाकिस्तान के मरकजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में MQM पाकिस्तान के मरकजी कायदीन और पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि बड़ी तादाद में कारकुनान और शहरी भी जश्न आज़ादी में शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध के सियासी हालात पर गुफ्तगू की। कहा कि सिंध को सही तरह गिन लो, हमसे पूछो असल हुब्बुल वतनी क्या होती है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने भी तकरीब से खिताब किया और अहले बंस रोड समेत मुल्क भर के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। शब आज़ादी की तकरीब के अख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिससे फ्रेस्को चौक बंस रोड का मंजर शानदार दिखाई दिया। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा मुबशिर हुसैन, सिटी 21। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें केक भी काटा गया। मज़ीद जानते हैं शाहरुख शाह से। जी शाहरुख, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शाह फैसल नंबर 3 से और इस वक्त जश्न आज़ादी की मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला शहर भर में जो है वो जारी है। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में भी इस वक्त जश्न आज़ादी का जो है वो सेलिब्रेशन का सिलसिला जो है वो सुबह से ही जारी था और आज शाम के वक्त जो है वो सबसे लाली परचम, सबसे बड़ा परचम इस वक्त जो है वो लहराया गया, उसकी रैली निकाली गई और शाह फैसल कॉलोनी के अवाम और रिहायशी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो इस रैली में उन्होंने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ PMLN के जो है वो रहनुमा भी मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अजहर साहब, बताइएगा कि आज की सेलिब्रेशन और जश्न आज़ादी, आज़ादी एक नेमत से कम नहीं होती, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने देखा कि आज 79वां आज़ादी मना रहे हैं, तो आप एक इसमें चेंज देखें कि आज शाह फैसल कॉलोनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान, तमाम लोग एक झंडे के नीचे जमाए हुए हैं पाकिस्तान का झंडा। और यही हमें जज्बा, यही हमें चाहिए कि जिससे पाकिस्तान तरक्की करे, और पाकिस्तान तरक्की जब करेगा जब हम एक कौम बनेंगे। तो उस एक कौम बनने के लिए आज का दिन हमें बहुत अच्छा मौका है। मैं दीगर जमातों से, दीगर लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एक झंडा हो जो पाकिस्तान का झंडा, इसके नीचे जमा हो जाए, एक कौम बन के दिखाएं। हमारे ऊपर दुनिया के जो दुश्मन है उनकी नजरें, मगर इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक फौज जो हमारी दिन रात 24 घंटे बॉर्डरों की हिफाजत करती है, उनको भी सलाम पेश करते हैं। और जो 20 लाख कमोपेश शोधाओं ने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनको भी सलाम पेश करते हैं और ये कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अगले साल इससे बड़ा और इससे ज़्यादा धूमधाम से। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मैं अपने कैमरामैन मनान से अगर रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो दिखाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कसीर तादाद आवाम की जो है वो मौजूद है, जो कि इस वक्त सब जलाली परचम जो है वो हर बंदे के हाथ में, हर फर्द के हाथ में जो है वो इस वक्त लहरा रहा है। और आज़ादी जो है वो एक नेमत है और जो रहनुमा है PMLN के, उनका ये कहना था कि एक जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे सारे जो है वो जमा है और यही खूबसूरती है जश्न आज़ादी की। और ये सिलसिला रात गए तक जो है वो सेलिब्रेशन का जो है वो जारी रहेगा। जी, सफ़ेद पोश घर में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। जश्न आज़ादी की तकरीब में मारूफ फनकार अनवर मकसूद, हिना दिलपज़ीर और अयाज खान ने शिरकत की। कौमी तराने की धुन पर सब सैलानी परचम सरबलंद किया गया। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न आज़ादी भरपूर जोश जज्बे और मिली जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सफ़ेद पोश में, जहां पर बुजुर्ग शहरियों के साथ यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस वक्त मुल्क की मारूफ अदाकारा हिना दिलपज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान का यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप क्या कहेंगी, ये वो लोग हैं जो किसी वजह से अपनों के साथ नहीं हैं, अपनों से दूर हैं, मगर यहाँ पर आकर फनकार और तमाम लोग इनसे मोहब्बतें बांट रहे हैं, आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ आकर इन लोगों के साथ वक्त गुजार कर कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हुआ। इकबाल शाह साहब जो हैं, उन्होंने उनकी जो ये इतनी बड़ी काविश है, और जिस तरह मैं देखती हूँ कि यहाँ पर जब आप जो लोग यहाँ पर मुकीम हैं उनसे मिलकर और उनके चेहरों को देख के तो एहसास होता है कि वो खुश हैं। बिल्कुल जी।
اور یہی خوشی کا موقع ہے. آزادی جو ہوتی ہے وہ اندر سے اصل خوشی ہوتی ہے. کوئی میسج؟ جی جی بالکل. میسج کا ایک دعا ہے کہ سورج سی ایک چیز تو ہم سب دیکھ چکے, سچ مچ کی اب کوئی سحر دے یا اللہ. یہی میرا میسج. بالکل جی, بہت خوبصورت میسج اور دعا ہے, اور اس سحر کا ہم سب پاکستانی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہنا دل پذیر موجود تھی, اور ان کا کہنا ہے کہ ان تمام افراد کے ساتھ گزرا ہوا وقت بہت بہتر گزرا, اور وطن عزیز سے اپنی محبت کا اظہار کیا, جہاں پر قومی ترانہ پڑھا گیا اور سبز ہلالی پرچم کو سر بلند کر کر جشن آزادی منایا گیا. جی.